Hello everyone. So today at Lawyers Club India we're going to discuss about a very important case known as Lakshmi Brahman versus State. So this is something that we have just started. It's an initiative that we have taken. We have decided that every week or 10 days we'll try to analyze one judgment like we're going to do right now. We'll analyze one judgment and bring to you all the necessary facts and the legal provisions that have been applied in the judgment and see what we can learn from those judgments, because what I believe is that reading law is one thing, understanding it is one thing, but when you start reading judgments, you start making connections between different sections. Because कोई भी केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक सिर्फ इसलिए तो जाता नहीं है कि देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड, किसने चोरी करी किसने नहीं करी. वो सुप्रीम कोर्ट तक तभी जाता है व्हेन देयर इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, व्हेन देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट्स द लॉ, इट्स ब्यूटिफुली डन in any case whatsoever. So here also we're going to talk about a very important concept, that is inquiry. Now inquiry सुनने में बहुत छोटा concept लगता है, मगर this concept is beautifully explained in this judgment and you'll enjoy while you listen to me here. So what happens in this case is Lakshmi Brahman versus State. This is from 1974. The case starts on the 11th day of November 1974, when there's a couple. I don't know whether it's a couple or not, but there are two people who are respondent in the Supreme Court now at the end of the trial. These people on 11th Jan, they were suspected of committing a murder. So the crime was under section 302 of IPC. These people surrendered themselves to the police, and so these people surrendered themselves to the police and police brought them to the magistrate. Now यहाँ पे हुआ क्या कि the offence was exclusively triable by sessions. These two people were brought by the police to the magistrate along with their police report. So these are some relevant sections which were here: 170, 207, 209, 309, 439. Some important sections were discussed. We will discuss about them later. So they were brought to the magistrate and magistrate ने उनको remand कर दिया custody में, and then he committed them to the court of sessions. Now these people were still in the custody and 60 days passed. 60 दिन पूरे हो गए एंड चार्जशीट नहीं आई. ना अगर चार्जशीट नहीं आई तो होता क्या है कि डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती है 167 के अंदर, ये हम सब लोग जानते हैं. अब उस टाइम पे जो 167 था वो अलग था, इट वाज क्वाइट डिफरेंट. अभी 1978 की अमेंडमेंट नहीं आई है, ये याद रखना है हमें. 1978 में जो अमेंडमेंट आई थी उसमें ये हुआ था कि अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया. 10 साल से नीचे का अगर ऑफेंस है तो 60 दिन के अंदर चार्जशीट लानी है, अगर वो नहीं लाए तो आपको डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगी. अगर 10 साल से ऊपर है तो 90 दिन में अगर चार्जशीट नहीं आई तो आपको डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगी. मगर 1974 में ऐसी कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी. सो 60 दिन का टाइम था चार्जशीट लाने के लिए, वो 60 दिन में चार्जशीट नहीं आई, इनको सरेंडर कर दिया गया था 170 में. 170 में क्या होता है कि सो इट सेज दैट व्हेन पुलिस हैज सफिशिएंट एविडेंस एंड पुलिस brings the accused to the magistrate, before the magistrate, the police can take bond, या फिर वो बॉन्ड भरवा सकते हैं, या फिर वो मैजिस्ट्रेट को दे देंगे, मैजिस्ट्रेट उनको कस्टडी कर देगा, या फिर उनसे सिक्योरिटी ले लेंगे. उनके पास कोई ऑफेंसिव वेपन्स वगैरह हैं तो वो चीज़ें भी उनसे ले लेंगे. ऑफेंसिव वेपन्स के बारे में आपने पीछे भी कहीं पे पढ़ा है सीआरपीसी में. इफ़ यू हैव रेड दी सीआरपीसी होल ऑफ इट, तो आपने पीछे भी एक जगह पे पढ़ा है, दैट इज सेक्शन 52. अगर किसी के पास कोई ऑफेंसिव वेपन्स मिलते हैं तो वो पुलिस ले लेती है. So these sections, try connecting them here and there so that you can remember things. अगर आपको यहाँ पे याद आया ऑफेंसिव वेपन कहीं और भी था तो आपको वो चीज़ कभी भूलेगी नहीं जिससे आपने इस चीज़ को कनेक्ट किया हुआ है. सो उनसे वेपन्स ले लिए जाते हैं, देन उसके बाद मैजिस्ट्रेट को दे दिया जाता है. एक चीज़ उसमें और लिखी है कि अगर बॉन्ड के ऊपर पुलिस ने CJM लिखा है, कोर्ट इज CJM, देन इट विल ऑल्सो इंक्लूड ऑल दी सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट्स. सो इससे हमें क्या एक चीज़ पता चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमने CRPC के कोर्स में सीखी लॉयर्स क्लब इंडिया पे. there's a course called CRPC certification by Mr. Gyan Shankar Shukla. He's a top trainer. He's been practicing for 45 years. He's been a trainer, judiciary aspirants trainer for the last 20 years, and he has the kind of command on CRPC that no one else, I have never ever seen anyone have that command. So we were taught by him.
उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बताई, छोटे छोटे शब्दों को कनेक्ट करते हुए इन चीज़ों से। सो अगर CJM लिखा है और लिखा है कि एनी सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट विल बी डीम्ड थ्रू CJM, तो हमें एक चीज़ देखनी है कि CJM कोई अपने आप में कोर्ट नहीं है। CJM जो है it's just one of the magistrate who has been appointed to lead all the magistrates. He does the distribution of the business between amongst all the magistrates. आप अगर सेक्शन 6 देखोगे, सेक्शन 6 ऑफ CRPC, सेक्शन 6 ऑफ CRPC, where it is written what are the classes of criminal courts. तो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में आप ये देखोगे कि वहाँ पे CJM कोई कोर्ट नहीं दी हुई है। वहाँ पे ट्रायल कौन कौन कर सकता है ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट कर सकता है, सेशंस कर सकता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकता है, सेकंड क्लास कर सकता है, एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। दीज आर द क्लासेस ऑफ कोर्ट्स विच आर गिवन देयर। ट्रायल 26 में दिया हुआ है, 6 में ये दिया हुआ है कि कौन कौन सी क्लासेस हैं कोर्ट्स की। तो ये सारी क्लासेस हैं कोर्ट्स की। CJM वहाँ पे नहीं दिखता हमें, CJM इज़ नॉट अ कोर्ट। तो जब भी हम CJM की बात करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, वो अलग से कोई अलग कोर्ट नहीं है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में से ही एक इंसान जो है, एक जो मैजिस्ट्रेट है, ही इज़ लीडिंग ऑल द मैजिस्ट्रेट्स, ही इज़ कॉल्ड द CJM, ही इज़ द चीफ। इसी तरीके से अगर आप सेक्शन 26 देखेंगे तो वहाँ पे भी ट्रायल बाय कोर्ट दिया हुआ है, ऑफेंसेस विच क्रिमिनल कोर्ट्स कैन डू ट्राई दी ऑफेंसेस। वहाँ पे भी हाई कोर्ट दिया हुआ है, सेशंस कोर्ट दिया हुआ है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दिया हुआ है, बाकी कोई कोर्ट नहीं दी हुई है। तो CJM का वहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। यहीं पे एक बात और है कि हाई कोर्ट कभी ट्राई करता है क्या कोई केस? सो हैव यू सीन एट एनी प्लेस कि हाई कोर्ट कभी ट्राई कर रहा हूँ? So as far as we know, as far as all the practicing lawyers know, it's really rare to find that High Court is trying an offense, a case. So, but there are provisions. So you can check out 474 of CRPC, and also you can check out 407 clause 8 of CRPC. There you'll find that High Court also has the power to try cases, originally try cases, and that can also happen. So coming back to 170, now after 170 what there was another relevant section which was discussed here, which was 207. 207 में आपको कॉपीज दी जाती हैं। सो जो भी रिकॉर्ड आता है, पुलिस रिपोर्ट होती है, FIR होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, उस सारी चीज़ों की फ्री कॉपी बना के, उस सारे रिकॉर्ड की फ्री कॉपी बना के एक्यूज्ड को देनी होती है। दैट इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन। आपको एक जजमेंट भी आप पढ़ सकते हैं जिसका नाम है ग्यालदर वर्सेस स्टेट, उड़ीसा की जजमेंट है, I think 1985, and there the honorable court has ruled that if the provisions of 207 and 208, 207 है cognizable offenses के लिए, 208 है नॉन cognizable offenses में रिकॉर्ड्स देने के लिए accused को फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर वो नहीं फॉलो होता है तो it can vitiate the proceedings, it will vitiate the proceedings. So they are mandatory to be followed. इसी तरीके से अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपीज़ देने की बात करें तो एक जगह और है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपीज़ दी जाती हैं। सो एक जगह तो है 154 जहाँ पे एक्यूज्ड को FIR की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। दूसरी जगह है 363 जहाँ पे एक्यूज को जजमेंट की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो ये दो जगहें भी आप चेक कर सकते हैं, इनको इंटरलिंक करेंगे एंड इनको साथ में पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कहाँ कहाँ पे फ्री की कॉपीज़ दी जाती हैं। आई वॉज मुझे ये तो पता था 154 में फ्री कॉपी है एंड यहाँ पे फ्री कॉपी है, 363 का नहीं पता था। रादर आई न्यू बट आई कुड नॉट रिकॉल और आई कुड नॉट रिमेंबर इट। सो आई वॉज वॉचिंग वन ऑफ द लेक्चर्स बाय SUCL, आई थिंक इट्स मिसेस उर्मिला हु टीचेस देयर, एंड उन्होंने ऐसा कनेक्शन कुछ करके मुझे बताया था, सबको ही बताया था कि 363 कैन बी लिंक्ड विद दिस एंड दिस, यहाँ पे फ्री कॉपी मिलती है, 363 माने फ्री, ऐसे करके। सो वी कैन, देयर आर डिफरेंट वेज दैट यू कैन रिमेंबर समथिंग। तो 363, 154 एंड 207 है, दीज आर सम प्रोविजंस जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ दिया जा रहा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड देने की बात हो रही है। आफ्टर 207 केम 209 में कमिटल होता है। सो मैजिस्ट्रेट के पास अगर कोई भी केस आता है जो उन्होंने ट्राई नहीं करना है, वो ट्राई किसी और को करना चाहिए, ये इस रीज़न की वजह से भी हो सकता है कि द मैजिस्ट्रेट थिंक्स दैट ही इज़ नॉट एम्पावर्ड टू इन्फ्लिक्ट इनफ पनिशमेंट फॉर अ
फॉर दैट ऑफेंस विच हैज़ कम टू हिज कोर्ट, तो इनके पास पावर सिर्फ 7 साल की है। 7 साल की अगर नहीं जमता है कि 7 years will not justify the pain that the accused has inflicted on the victim, then he can commit it to the higher court and they can then take over. So 207 में कमिटल्स होते हैं। देन देयर इज अनदर प्रोविजन विच इज़ 309, वहाँ पे रिमांड करी जाती है, कस्टडी रिमांड कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर सकते हैं आप, ये चीज़ें करी जाती हैं। देन देयर इज़ अनदर सेक्शन 439 जहाँ पे मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, स्टे लगाया जा सकता है, बेल कैंसिल करी जा सकती है। कोई अगर बेल पे है तो उसकी बेल कैंसिल हो जाती है, अगर कोई कस्टडी में है तो उसको रिलीज़ किया जा सकता है कुछ भी कंडीशंस पे। जो कंडीशंस मैजिस्ट्रेट ने लगाई है उन कंडीशंस को भी मॉडिफाई किया जा सकता है। सो वाइल आई एम सेइंग ऑल दीज सेक्शंस, जस्ट पॉज दिस वीडियो देयर एंड ट्राई रीडिंग दीज सेक्शंस देन एंड देयर, ताकि ये सब कुछ आपको साथ साथ में ही समझ आते रहे, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। Now what happened in this case, coming back to this case, what happened, two people who are the respondents in the Supreme Court now, these two people were arrested by the police on the basis of suspicion. They were suspected to have committed the crime of murder under section IPC का 302, which is an offense which is exclusively triable by the कोर्ट ऑफ सेशंस। ये हमें कहाँ पे पता चलता है कि कोर्ट ऑफ सेशंस से ट्राइबल है या नहीं है? सो दिस इज इन द फर्स्ट शेड्यूल। आप फर्स्ट शेड्यूल में जाके देखेंगे, पूरी सीआरपीसी पलट दो, लास्ट में शेड्यूल है सुप्रीम, वहाँ के लास्ट कॉलम जो आपको, लास्ट जो है कॉलम, वहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन सी कोर्ट ट्राई कर सकती है एक ऑफेंस को। सो जितने भी बड़े बड़े ऑफेंसेस है, 121, 124 सेडिशन हो गया, और भी जो बड़े बड़े 302 हो गया, और इसके आगे के तो मोस्ट ऑफ दी सेक्शंस जो हैं दे आर ओनली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस, क्योंकि वहाँ पे अपराध ही बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए पनिशमेंट भी बड़ी देनी होती है एंड थोड़ा सीरियस भी होता है। तो दैट्स वाई more experienced judges and judges who are empowered to inflict more punishment and justifiable punishment, they are there to take the cognizance. Now what happened in this case, they were suspected of committing the crime of murder under section 302 of IPC and they were arrested by the police. तो पहली बात तो, क्या पुलिस आपको सस्पिशन के बेसिस पे अरेस्ट कर सकती है? सो इसका आंसर है येस। आपको 41 पढ़ना होगा, सेक्शन 41, जहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 तरीके हैं जहाँ पे पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। एक, उनके सामने ही आप कोई कांड कर दो, उनके सामने ही आपने कुछ कर दिया, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर किया है तो उसकी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। दूसरी चीज़, अगर उनके पास कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आती है। क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है? एफआईआर आ गई आपके पास लिखी हुई, तो 154 में आपके पास एफआईआर आ गई, तब आप एक इंसान को अरेस्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। सो दिस वाइडन्स द पावर ऑफ पुलिस मैन। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, उसका आपको सस्पिशन है कोई किसी एक के ऊपर, तो आप उसको तब भी अरेस्ट कर सकते हैं। उसके आगे उसके रूल्स दिए हुए हैं कि 7 साल से ऊपर होगा देन यू डोंट हैव टू गिव द नोटिस ऑफ अपीयरेंस। अगर 7 साल से नीचे है तो नोटिस ऑफ अपीयरेंस देना बहुत ज़रूरी है। रिनी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी की आप जजमेंट इसमें पढ़ेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसमें कंपनसेशन दी गई थी। टू विमेन वर अरेस्टेड and they were brought in very wild conditions by the police. So police had to pay 5 lakh compensation to each one of them. So this was Rini Johar versus state. So now what happened, यहाँ पे अच्छा, also not only police can arrest you when you are committing a cognizable offense, it can also be a private person who's arresting you. उसका प्रोसीजर 43 में दिया हुआ है, एंड मैजिस्ट्रेट भी आपको अरेस्ट कर सकता है, उसका प्रोसीजर 44 में दिया हुआ है, और बाकी नॉर्मल अरेस्ट का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो 46 में दिया हुआ है। वहाँ पे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं कि हाउ डू यू अरेस्ट अ विमेन, कब आप फोर्स यूज़ कर सकते हैं। जहाँ कई बार लोग पूछते हैं एनकाउंटर कहाँ पे दिया हुआ है सीआरपीसी में, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एक्साइटिंग क्वेश्चन कि एनकाउंटर दिया कहाँ हुआ, एनकाउंटर कैसे कर देते हैं। तो वो आपको सेक्शन 46 में ही दिया हुआ है कि व्हेन कैन दी पुलिस यूज़ सच काइंड ऑफ फोर्स, तो कौन सी कंडीशंस में वो हो सकता है। नाउ कमिंग बैक टू द केस, इनको सस्पिशन पे अरेस्ट कर लिया गया। दीज पीपल वर ब्रॉट टू द मैजिस्ट्रेट एंड मैजिस्ट्रेट ने क्या किया कि इनको कमिट कर दिया कोर्ट ऑफ सेशंस में एंड तब तक के लिए उनको कस्टडी में डाल दिया। यहाँ हो गई गड़बड़। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मे बी दीज पीपल व्हाट दे वर ट्राइंग वाज कि डिफ़ॉल्ट बेल नहीं लेते, डिफ़ॉल्ट बेल के लिए रुके रहते हैं 1-2 महीना, हम क्या करेंगे कि बाद में जाके इस पूरे केस को ही विशिएट करा देंगे। किस तरीके से विशिएट कराएंगे कि हम ये बोलेंगे कि मैजिस्ट्रेट के पास कस्टडी
में हमें डालने की पावर ही नहीं थी। नाउ दैट माइट बी द केस, दैट इज़ व्हाट आई थिंक। नाउ 4:30 इन्होंने क्या किया कि ये इन्होंने 3 महीने वेट किया, 5 फेब आ गई, 3 महीने हो गए, 11 नवंबर को ये शुरू हुआ था, 2 नवंबर को ये शुरू हुआ था, 11 मार्च को ख़त्म हुआ था 1984 में, 2 नवंबर को शुरू हुआ, 5 फरवरी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई हाई कोर्ट में, दे रीच्ड हाई कोर्ट। वहाँ जाके इन्होंने बोला कि ये कस्टडी जो है ये इलीगल है क्योंकि मैजिस्ट्रेट डिड नॉट हैव द पावर टू पुट अस इन कस्टडी। नाउ व्हाट आर द कंटेंशंस दैट दे पुट फॉरवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने भी बहुत अच्छा रखा, हाई कोर्ट ने भी बहुत अच्छे से इसको इंटरप्रेट किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत ही अच्छे से किया। तो नाउ व्हाट हैपेंड, दे सेड कि दे वेंट इन 439 में मैंने आपको बताया कि मॉडिफिकेशन कर सकते हो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर की। अगर कोई बेल पे है तो उसकी बेल कैंसिल कर सकते हो, अगर कोई कस्टडी में है तो उसको रिलीज़ भी कर सकते हो। ऑल्दो देर आर कंडीशन, ऐसा नहीं है कि किसी का भी रिलीज़ कर दिया, किसी को भी छोड़ दिया, कभी भी कैंसिल कर दिया। व्हेन यू आर कैंसिलिंग अ बेल देन यू हैव टू inform the public prosecutor. Now public prosecutor कौन होता है? Public prosecutor is a person who has been defined in section 24, 25 आपने पढ़ा है CRPC में, जहाँ पे पूरी public prosecutor और ये prosecution directorate वगैरह की बात हुई है। तो he is a person जहाँ पे जिन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा कि इस बंदे को रिलीज़ किया जा रहा है या इसको बेल से अब छोड़ा जा रहा है। इसी तरीके से उसके अंदर और भी प्रोविजंस हैं, जैसे अगर कोई केस 376 का है। अच्छा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात 209 में भी हुई है। अगर यहाँ से कमिटल हो रहा है, 209 में कमिटल करता है मैजिस्ट्रेट, अगर वहाँ से कमिटल हो रहा है छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट में, देन ऑल्सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड कि ऐसा हो रहा है। सो ही हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड बिकॉज ही इज़ द पर्सन हु इज़ रिप्रेजेंटिंग द स्टेट। आई होप आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट। तो ही इज़ द पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द स्टेट, एंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है केस में। कुछ बड़ा चेंज आता है, जैसे कमिटल कर दिया है या कैंसिल कर दिया है बेल या रिलीज़ कर दिया है बेल पे किसी को, तो इनको इन्फॉर्म करना होता है। तो 209 में भी ये प्रोविज़न है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इसी तरीके से 439(2) में भी है। 439 में एक बात और लिखी हुई है कि अगर 376 का मुकदमा है, 376 रेप केसेस, अगर 376 का मुकदमा है, 376 का है, 376 डी का है, DADB का है, इस तरीके से अगर ऑफेंसेस हैं तो उन केसेस में जो इन्फॉर्मेंट है, इन्फॉर्मेंट विक्टिम भी हो सकता है जिसका रेप हो गया है, और वो भी हो सकता है जिसने आके उसकी सूचना दी। तो डज नॉट नेसेसरीली मीन कि वही इंसान होगा जिसने सिर्फ विक्टिम है, सिर्फ वही आ सकता है। तो इसके लिए आप एक बार अगर 2D पढ़ेंगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन में कंप्लेनेंट कौन होता है उसके बारे में भी कुछ दिया हुआ है, वो भी इसके साथ आप पढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। नाउ 439(2) में जब 376 का केस होता है तो जब आप किसी को रिलीज़ कर रहे हैं कस्टडी से, उसको बेल दे रहे हैं जिसको रिमांड किया गया है, तो आप it is obligatory, the word used is obligatory that the person, the informant has to be present in the court. इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे एक्यूज्ड का होना ज़रूरी है, जैसे जजमेंट सुनाई जा रही है, चार्ज बनाए जा रहे हैं, तो उस जगह पे भी होना एक्यूज का ज़रूरी होता है। इसी तरीके से कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे मैजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन होती है, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होती है कि आप अटेंडेंस से इनको मुक्त कर दो, इनका आना ज़रूरी नहीं है, एग्जेम्प्ट कर दो इनकी अपीयरेंस। तो उसके लिए आप सेक्शंस पढ़ सकते हैं, 115, 205, 253, 115, 205, 253, एंड यू कैन ऑल्सो रीड 317। 105, 115 में क्या होता है कि देयर जनरल प्रोविजंस कि कब पर्सनल अटेंडेंस से आपको मुक्त किया जा सकता है, कि पर्सनली आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीडर के थ्रू आ जाना। वहाँ पे सारी बॉन्ड्स की बातें हो रही हैं। आप 106 से 110 के बीच में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जुडिशियल एस्पायरेंट्स के लिए भी और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। 106 में आपकी किस तरह का बॉन्ड है, फिर सस्पेक्टेड पर्सनस के बॉन्ड, हैबिचुअल ऑफेंडर्स के बॉन्ड, उनसे कितने साल के लिए बॉन्ड लेंगे। 106 में 3 साल है, 110 में 3 साल है, बाकी सब में 1 साल है। तो 115 में आपको पर्सनल अटेंडेंस से एग्जेम्पशन दे दी जाती है। 205 में भी आपको एग्जेम्पशन दे दी जाती है जब आपका इशू ऑफ प्रोसेस वगैरह होता है, तो उसमें भी मैजिस्ट्रेट ये आपको समन में डाल सकता है कि यू डोंट हैव टू पर्सनली कम टू द कोर्ट। 253 में समन्स केसेस चल रहे होते हैं, अगर बहुत ही छोटी बात है, कोई फ़ाइन छोटा मोटा है, तो उसमें भी आपको
बोला जा सकता है कि आपको खुद आने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी में फ़ाइन भर के भेज दीजिए या फिर किसी और को भेज दीजिए। और 317 में एक अनोखा केस है जहाँ पे इफ़ सम पर्सन इन द कोर्ट इज़ डिस्टर्बिंग द कोर्ट, वो कोर्ट ही नहीं चलने दे रहा है, कुछ भी किसी भी तरह का पागल है वो, तो देन ऑल्सो ही कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरेंस, या उसको मना ही कर दिया जा सकता है कि तू आना ही मत, तू हमें अपना काम करने दे। 317। सो वेयर वर वी, सो अब ये 439 में आ गए। इन्होंने बोला कि हमारी जो कस्टडी है वो गलत थी, मैजिस्ट्रेट ने गलत कस्टडी दे दी है। क्यों दी है गलत कस्टडी? इनके पॉइंट्स ये थे कि मैजिस्ट्रेट जो है उनके पास अगर कोई एक केस आता है जो ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय सेशंस है, तो उनके पास पावर ही नहीं है। 170 में उनके पास एक्यूज्ड को लाया गया, उन्होंने यहाँ पे इनिशिएशन हुई। अब अलग अलग चैप्टर्स हैं जो आपको दिमाग में रखने होंगे। इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 12 है, फिर 13 में आपकी जुरिसडिक्शन आ जाती है, फिर 14 में आपकी रिक्विजिट्स आ जाते हैं, फिर इनिशिएशन होती है, फिर समन्स वगैरह जाते हैं, फिर चार्ज बनता है, फिर ट्रायल कमेंस होता है। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं। इनके बीच में जो 2-3 स्टेजेस हैं, जो 13, 14, 15 चैप्टर है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई। सो यहाँ पे इन्होंने बोला कि मैजिस्ट्रेट जो है ही इज़ नॉट एम्पावर्ड, उनको कमिट करना है केस को, कोर्ट ऑफ सेशंस को। ही इज़ नॉट द कोर्ट हु इज ट्राइंग द केस, सो ही कैन नॉट पुट अस इन द कस्टडी। वो हमें यहाँ पे रिमांड नहीं कर सकते थे, उन्होंने गलत किया ये करके। ये पावर सेशंस के पास थी। यहाँ पे इंक्वायरी नहीं चल रही थी, अब इंक्वायरी की बात आ गई है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंक्वायरी चल ही नहीं रही थी, ये पार्ट मैजिस्ट्रेट के करने का था ही नहीं काम। अगर आप इंक्वायरी की डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज़ एनीथिंग डन बाय मैजिस्ट्रेट अदर दैन ट्रायल। तो यहाँ पे इन्होंने इसको कंटेंट कर दिया कि ये इंक्वायरी की स्टेज थी ही नहीं, तो इन मैजिस्ट्रेट ने हमें कस्टडी में कैसे डाल दिया। अब जो था इसके अंदर इशू क्या बन गया, मेन जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने सामने रखा, वो ये रखा कि जब मैजिस्ट्रेट के पास एक केस आया है जो ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय सेशंस है और उन्होंने कमिट कर दिया है, तो इट बिकम्स अ ट्रायल ऑफ द सेशन। वो डायरेक्टली उस पॉइंट से सेशन का केस हो गया, वो मैजिस्ट्रेट का रहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ से स्टेज इंक्वायरी से चेंज होके सेशंस के पास जाके ट्रायल बन चुकी है, जो 226 से शुरू होता है। अब इसी चीज़ को आगे सुप्रीम कोर्ट जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्लियर करेंगे इसको कि नहीं, वहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एक वैक्यूम टाइप का बन जाता है। 226 में ट्रायल शुरू होता है, तो उससे पहले अगर तुम्हारे सामने कोई आया है जिस जो कॉग्निजेंस आपने केस की ली है मैजिस्ट्रेट ने, और आपके सामने अक्यूज्ड खड़ा हुआ है, तो उस चीज़ से डील करने के लिए एक वैक्यूम बना के छोड़ नहीं दिया जा सकता। वहाँ पे स्टैच्यूट में लिखी हुई बातें हैं कि 207, 208 हैज़ टू बी फॉलोड मैंडेटरीली व्हेन यू आर कमिटिंग अ केस टू दी सेशंस। फोर्थविद केस कमिट हो जाएगा, मगर हेयर द पावर टू रिमांड इन बिटवीन इन द मीन वाइल विल रिमेन विद मैजिस्ट्रेट। नाउ दूसरी चीज़ इन्होंने ये बोली कि ये तो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशंस था, और 209 में कमिटल में लिखा हुआ है कि अगर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो आप फोर्थ विद माने विदाउट एनी डिले आप उसको सेशंस को भेज देंगे। तो फोर्थ विद आपने 154 में भी पढ़ा हुआ है, 157 में भी पढ़ा हुआ है। फोर्थ विद माने विदाउट डिले आप इसको सेशंस भेज देंगे केस को। तो आपके पास पावर रही नहीं गई, यहाँ पे तो वैक्यूम है, तो आपने कैसे हमें, कौन सी पावर यूज करके आपने हमें रिमांड में डाल दिया। नाउ व्हाट हैपेंड वाज दैट दिस नाउ व्हाट हैपेंड, हाई कोर्ट ने ये सारी कंटेंशंस मान ली कि हाँ ये सही बात है कि आपको यहाँ पे आप कस्टडी में नहीं डाल सकते थे। अच्छा, ट्रायल के लिए कमिट कोर्ट ऑफ सेशन को सिर्फ मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, हाई कोर्ट भी कर सकता है। ये आपको 403 एक के 3 में मिलेगा। वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि ये सिर्फ मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, इट कैन बी दी कोर्ट ऑफ दी हाई कोर्ट ऑल्सो, जो आपको कोर्ट ऑफ सेशंस को दे सकते हैं ट्राई करने के लिए। तो वो ट्रांसफ़र ऑफ केसेस में आ जाता है 405, 406 में। नाउ व्हाट सुप्रीम कोर्ट डिड, सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही ही किया, स्टैच्यूट को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया है। व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड वाज कि अच्छा आपने ये देखा कि वैक्यूम है यहाँ पे, एंड ही हैड टू डू इट फोर्थ विद उन्हें कमिट कर देना था कोर्ट ऑफ सेशंस को। मगर क्या आपने ये नहीं देखा कि 209 में कुछ और भी लिखा हुआ है, एंड वहाँ पे अगर वैक्यूम क्रिएट होता है तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे हाई कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला 226 जाके पढ़ो। 226 में ट्रायल कमेंस होता है, प्रोसिक्यूशन
कमेंस होती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमेशा कमेंसमेंट करता है, इट्स नो वन हु कैन अदरवाइज ओपन द केस, इट्स ऑलवेज पब्लिक प्रोसिक्यूटर. This you can also see in 303. सो आप 303 भी देखेंगे तो वहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही ओपन्स द केस, एंड इट्स नॉट द, एंड इफ़ यू थिंक यू वांट योर अनदर लॉयर टू टेक अप द केस कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं कर पाएंगे या उनके पास बहुत बिजी होते हैं, उनका कुछ और इंटरेस्ट भी हो सकता है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन हैव योर ओन लॉयर हु विल ओनली असिस्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट मे बी ही कैन डू समथिंग इन द कोर्ट, बट अदरवाइज नो. 302 303 पढ़ेंगे सीआरपीसी का तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है. उसी तरीके से आगे आपको 304 में लीगल एड वगैरह के प्रोविजंस दिए हुए हैं उस जगह पे. तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो हमेशा ओपन करता है एक केस को. तो अच्छा ये पावर की, अच्छा ये आपका राइट की एडवोकेट आप खुद अपना कर सकते हैं, ये आपको 41D में भी दे रखा है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखा है. तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट राइट्स दैट यू हैव, फंडामेंटल राइट है ये. नाउ व्हाट हैपेंड, कोर्ट सेट 226 में जाके देखो, जब भी एक प्रोसिक्यूशन शुरू होता है तो उससे पहले वो कहता है कि 209 से हमारे पास कमिटल होगा, और 209 जाके पढ़ोगे तो देयर इट इज़ रिटन दैट it is only after the compliance of 207 and 208 जहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स देने थे, आप सिर्फ उसके बाद ही कर सकते हो कोई भी काम, उसके बाद ही करोगे कमिटल आफ्टर दैट होगा. अब उनकी लाइंस को आपको खुद पढ़ना पड़ेगा 207 की, देन ओनली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे वर्ड्स के साथ कैसे खेला गया और कैसे वर्ड से कन्फ्यूजन हुई है. वहाँ पे आफ्टर वर्ड जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक वर्ड की वजह से हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दे दिया. नाउ सुप्रीम कोर्ट सेट कि वहाँ पे लिखा है आफ्टर 207 एंड 208, 207 और 208 की आप कंप्लायंस करेंगे, उसके बाद ही कमिटल करेंगे. फोर्थ विद जरूर वहाँ पे लिखा हुआ है, मगर आफ्टर भी लिखा हुआ है, आफ्टर 207 एंड 208. नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेट अनदर पॉइंट कि 207 एंड 208 जो है ये जुडिशियल फंक्शंस हैं मैजिस्ट्रेट के, एंड ही हैज़ टू कैरी देम लाइक ही डज कॉग्निजेंस. 190 में कॉग्निजेंस कभी भी 200 में नहीं होती. लोगों को ये भ्रम है, मुझे भी ये भ्रम था, सबको ये भ्रम था, बट दैट वी लर्नड आफ्टर द CRPC कोर्स, जिसमें ज्ञान सर ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई. सो इन केस यू वुड वांट टू गो एंड चेक आउट ये ज्ञान सर का क्या सीन है, CRPC क्या है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और you can also go to any of our channels. You can reach out to me on LinkedIn or any place and check out the CRPC course. If you think you are someone who want to pursue criminal law, this is something I will definitely recommend you take this course once. Lawyers Club India has tried to keep it very reasonable so that it can reach out to everyone. सबको पता हो कि criminal procedure है क्या. If you want to get over it, on the top of it आप चढ़ना चाहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर के ऊपर, दिस इज़ द कोर्स. इट्स अ वेरी लॉन्ग कोर्स, बहुत लंबा कोर्स है. वी टुक अराउंड 3 months वीकली क्लासेस, 4 घंटे सैटरडे एंड संडे, तब जाके वो ख़त्म हुआ. उसमें रूलिंग्स भी हैं, इंटरकनेक्शंस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो जस्ट टेक माई वर्ड एंड गो टू द लिंक एंड ट्राई इट आउट. नाउ व्हाट हैपेंड, कोर्ट ने एक चीज़ और बोली. कॉग्निजेंस जैसे आपने 191B 190 के 1 के B में कॉग्निजेंस ली, दैट इज अ जुडिशियल फंक्शन. उसी तरीके से 207 और 208 भी जुडिशियल फंक्शंस हैं विच ही हैज़ टू कैरी आउट. उसके बाद वो फोर्थ विद आगे बढ़ सकते हैं. इसी में एक पॉइंट और बोला कि आप 193 भी पढ़िए. 193 में लिखा हुआ है कि इट 193 ऑलरेडी प्रिक्लूड्स कोर्ट ऑफ सेशन फ्रॉम टेकिंग ओरिजिनल कॉग्निजेंस इन एनी केस. it always has to go from magistrate to the court of session. मैजिस्ट्रेट जो है उसके पास जब केस आएगा वो ही आगे भेजेंगे उसको, उसके अंदर कंप्लायंस करने के बाद. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था. आई कैन नॉट रिमेंबर द नेम राइट नाउ, बट उस केस में क्या हुआ कि कोर्ट के पास कोई आया जिसने बोला कि पुलिस आई एंड पुलिस ने रिपोर्ट किया कि there's an offense that has happened and it is exclusively tribal by session. तो मैजिस्ट्रेट ने बोला कि आपको डायरेक्ट आप कोर्ट ऑफ सेशंस चले जाओ. तो दिस वाज रूल्ड अगेंस्ट द लॉ दैट मैजिस्ट्रेट ये नहीं बोलेगा कि आप कोर्ट ऑफ सेशंस जाओ. जो मैजिस्ट्रेट है वो पॉक्सो कोर्ट का केस था कि उन्होंने पॉक्सो कोर्ट भेज दिया था कि वहाँ जाओ, ये हमारा केस नहीं है, एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशन है.
वो आप नहीं करेंगे, आप यहीं पे कॉग्निजेंस लेंगे, बिकॉज 191B में सिर्फ मैजिस्ट्रेट को पावर है ओरिजिनल कॉग्निजेंस लेने की, उसके बाद उसको कमिट किया जा सकता है। नाउ कमिटल वो हो जाएगा, सेशंस के पास भी कुछ कुछ वो हैं पावर्स कि वो ओरिजिनल कॉग्निजेंस लेते हैं, 199 वगैरह हम पढ़ सकते हैं। तो एक तो प्रिक्लूड कर देता है 193, तो मैजिस्ट्रेट को तो लेना ही पड़ेगा कॉग्निजेंस। अब मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, उसके बाद एक एग्जांपल दिया कंक्लूड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कि जब उन्होंने मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है एंड पीपल आर देयर इन द कोर्ट एंड द केस हैज़ टू बी कमिटेड, बट जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो अभी तक दिए नहीं गए हैं, उनकी कॉपीज़ तैयार नहीं है, उस केस में मैजिस्ट्रेट भला क्या करेगा? अब चुटकी बजा के कोर्ट ऑफ सेशंस तो पहुंचा नहीं देगा, या फिर उनको खड़ा भी नहीं रहने देगा, बोलेगा रात भर यहीं खड़े रहो या घर चले जाओ, ये भी नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या करेगा? कस्टडी में तो डालना ही पड़ेगा। उस केस में आप क्या कहते हो? हाई कोर्ट से पूछा तो उन्होंने बोला रिकॉर्ड्स वॉल्यूमिनस भी हो सकते हैं, क्या पता बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, उसका क्या करोगे? अब वॉल्यूमिनस भी आपने कहीं पे पढ़ा होगा पीछे। आप समवन इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आप मुझे कमेंट्स में बताओ वॉल्यूमिनस अगर रिकॉर्ड्स हैं उस केस में। एविडेंस एक्ट में भी कुछ दिया हुआ है, एविडेंस एक्ट में क्या दिया हुआ है और सीआरपीसी में क्या दिया हुआ है, आप मुझे कॉमेंट्स में बताओ। सो कोर्ट ने बोला कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, एग्जाम्पल देके बताया कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तब क्या करेंगे आप? तब तो जो मैजिस्ट्रेट है उसको कस्टडी करनी पड़ेगी ना। एंड जहाँ तक बात है 309 की, जहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला था कि हाँ मैजिस्ट्रेट जो है वो 309 भी यूज़ नहीं कर सकता रिमांड के लिए, तो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप 403 या 406 पढ़िए, उसका सब क्लॉज 6 पढ़िए, जहाँ जहाँ के प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि जब भी एक बड़ी कोर्ट स्टे करेगी एक केस को, 406 403 होना चाहिए, जब भी एक बड़ी कोर्ट स्टे करेगी, 407 भी हो सकता है, बड़ी कोर्ट स्टे करती है तो इट विल नॉट अफेक्ट द पावर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट अंडर 309 टू रिमांड एन एक्यूज्ड इनटू द कस्टडी। देयर द सुप्रीम कोर्ट कंक्लूडेड द केस एंड सेड दैट ये पार्ट जो है दिस इज इंक्वायरी, और फिर उसे एक्सप्लेन किया गया। नाउ इन्वेस्टिगेशन आपको पता है 2H में दी हुई है। इन्वेस्टिगेशन इज व्हेन पुलिस ऑफिसर्स फाइंड आउट एविडेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ, वो इन्वेस्टिगेशन हो गई, उसके चैप्टर्स 12 13 आपके पास आ गए। उसके बाद इंक्वायरी आएगी 14 15 और आगे तक, जहाँ तक चार्ज बनता है और ट्रायल शुरू होता है 225 से सेशन का। सो दिस इज हाउ द डीमार्केटेड इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। दिस इज हाउ वी केम टू नो कि ट्रायल क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होती है और इंक्वायरी क्या होती है। तो इस तरीके से आप समझें इस चीज़ को। अगर कोई, अब ट्रायल कहाँ पे डिफाइंड है? ट्रायल डिफाइंड ही नहीं है। ट्रायल को आपको समझने के लिए यहीं से इम्प्लाई करना पड़ेगा कि ट्रायल इन्वेस्टिगेशन यहाँ हो गई, इंक्वायरी यहाँ पे कोर्ट ने बता दी, तो अब उसके बाद जो चालू होगा वो ट्रायल होगा। 226 से आप पढ़ना शुरू करो तो आपको ट्रायल की ग्लिम्सेस दिखनी शुरू हो जाएंगी। सो दिस वॉज इट इन लक्ष्मी ब्राह्मण वर्सेस स्टेट। इफ़ यू लाइक्ड दिस डिलीवरी, this lecture, I'll not call it lecture, I must be younger than most of you, so if you like this presentation by me, if you find it useful, tell me in the comments, we'll make more such videos। आप judgments बताएं which we should analyze, CRPC से एविडेंस है किसी और सब्जेक्ट से, एंड हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इसी तरीके से। एंड कीप कमिंग बैक, सब्सक्राइब टू दी चैनल। वी आर ऑन डिफरेंट चैनल्स, lawyerclubindia.com, we have a website also, you can find judgment summaries there which are very very important if you are a judicial aspirant or anyone who looks for daily legal updates. So thank you so much. This is Raghav Arora, the editor for Lawyers Club India, and we'll meet again soon.